So next is classification of bases. So first of all classification of bases on the basis of strength. सबसे पहले हम क्लासीफाई करने वाले हैं बेसिस को उनके स्ट्रेंथ के बेस पे. So let's see the categories. So categories are strong base and another one is weak base. स्ट्रेंथ के बेस पे एक चीज स्ट्रॉन्ग हो सकती है, एक क्या हो सकती है, वीक हो सकती है. सो अगेन व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस? तो बेसिस विच गिव अस कंप्लीट डिसोसिएशन सेम एज द एसिड्स. द एसिड्स कौन से अपने पास स्ट्रॉन्ग थे? द एसिड्स विच आर अंडर गोइंग द कंप्लीट डिसोसिएशन और ज्यादा हमें क्या दे रहे हैं? हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. एंड हियर इन केस ऑफ बेसिस same concept is here, but the ion produced are OH negative ions. So complete dissociation and produce high concentration of OH negative ions. Next is weak bases. So sorry, examples of strong bases. Examples में हमें पता है जो हमारी alkali metals हैं, जो reactive highly active metals हैं, उनके साथ जो bases बनेंगे बेटा, that will be strong bases. For example, potassium, sodium and barium. These are the hydroxide formed by the active metals. और ये क्या रहेंगे फिर हमारे पास? strong bases रहेंगे. Sodium hydroxide, potassium hydroxide and barium hydroxide. Next we'll proceed further with the classification only. So that is only on the basis of strength. So let's start with the strong bases. Strong bases we have done, weak bases another. Now we can go with the explanatory part of weak bases. So weak bases are the bases which are produced by the partial dissociation. Partial मतलब half. कुछ हद तक OH negative ion produce होगा. Low concentration will be there for OH negative ion. So weak bases are produced by the partial dissociation and produces low concentration of OH negative ions. So example we can see here. Example is magnesium hydroxide, ammonium hydroxide, copper hydroxide. Fine. तो जो मॉडरेट एक्टिव मेटल से या लेस एक्टिव मेटल से जब हमारे पास OH आयन ज्वाइन करके हाइड्रोक्सिल आयन ज्वाइन करके हमें बेस बना के देगा, दोज बेसिस विल बी वीक इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. सो नेक्स्ट कैटेगरी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन के बेस पे. सो दे आर अगेन कंसंट्रेटेड एल्कलीज एंड अनदर वन इज डाइल्यूट एल्कलीज. So what are the concentrated alkalis? Concentrated alkalis are the alkalis which having a relatively high percentage of alkali in its solution. Obviously concentration की बात हो रही है तो जिस केस में high OH आयन का concentration रहेगा that will be more concentrated alkali. तो same in the case of concentration हम क्या पढ़ रहे हैं? Concentration के base पे we can see same as the acid if you guys remember. हमने सेम चीज पढ़ा था कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड. तो सेम वी आर गोइंग टू डू विद कंसंट्रेटेड एल्कलीज एंड डाइल्यूट एल्कली. अब कंसंट्रेटेड में क्या होने वाला है? हाई परसेंटेज किसका? OH नेगेटिव आयन का. यहां पे क्या रहेगा? लो परसेंटेज ऑफ OH नेगेटिव आयन. फाइन. So this is the very important thing to understand. The things are very common among these two, but only the formation of ions is different. Fine. Dilute alkalis are the alkali which are having low percentage of alkali in the aqueous solution. Fine. So next classification of the bases is on the basis of acidity. तो एसिडिटी के बेस पे हमारे पास जो बेसिस है उनको क्लासिफाई करा जा रहा है डिफरेंट क्राइटेरियाज में, सेम एज विद द basicity in case of acids. तो now monoacidic base, monoacidic के बाद अपना था diacidic, then triacidic base. Same in the case of triabasic, diacidic. उसके केस में क्या था हमारे पास? एसिड के केस में भी सेम चीज था, बट वहां पे क्या था? बेसिसिटी कर रहे थे, बिकॉज बेस के केस में क्या रहेगी? एसिडिटी. OH नेगेटिव आयन डील्स विद एसिडिटी. सो लेट्स सी हाउ. मोनो एसिडिक बेस जो हमारे पास है सेम इज OH आयन 1 रहेगा, प्रोड्यूस ओनली 1 OH नेगेटिव आयन. डाया एसिडिक विच कैन प्रोड्यूस 2 OH नेगेटिव आयन्स. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ OH नेगेटिव 1 आयन जो हमारे पास सिंगल जिनका वैलेंसी 1 रहेगा ना अपने पास मेटल्स का, एक्टिव मेटल्स का, से पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, अमोनियम, इनकी वैलेंसी कितनी है? कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 1 ओनली. तो दे कैन कंबाइन विद फर्दर OH आयन 1 ओनली. So they are monoacidic. Next is acidity is 1 here.
फाइन. अनदर इज diacidic we can see. So diacidic के केस में we can see 2OH negative ions will be produced. So as per that examples are zinc hydroxide, calcium, because the valency of combining capacity of zinc is 2, तो it can combine with further 2 OH ions. तो जब भी जिंक के साथ हमारे पास बेस बनने वाला है, सॉरी ऑक्साइड बनने वाला है, तो दैट हाइड्रोक्साइड बनने वाला है, सॉरी दैट हाइड्रोक्साइड विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 OH negative ions only. So that's why that is diacidic base. Another is the example of, here is the acidity 2. Another is the example of triacidic base. So triacidic name indicating 3 क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टीज देगा, 3 OH आइन देने वाला है हमें. तो 3 OH आइन्स में हमारे पास आ रहे हैं एग्जांपल्स AlOH thrice, iron OH thrice, water insoluble etc. तो these are the further examples which are the things which we can come to know कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर जो बेस है डायाएसिडिक है, डायाबेसिक है, तो कैसे, बिकॉज वी नो दैट, मैं एग्जांपल ले रही हूँ डायाबेसिक का. जैसे हमारे पास गिवन है जिंक हाइड्रोक्साइड, तो आई नो वी कैन डन दिस ऑल थिंग्स इन द 9th स्टैंडर्ड कि वी नो दैट जिंक का वैलेंसी कितना है, जिंक का वैलेंसी इज 1. OH नेगेटिव, जिंक के वैलेंस शेल में ना 2 आयन होते हैं, 2 इसका वैलेंसी है, तो OH का 1 रहता है. तो हमें पता है जब भी फॉर्मूला बनेगा क्रिस क्रॉस मेथड है टू मेकिंग द फॉर्मूला, तो दिस वैलेंसी विल कंबाइनिंग विद दिस, बिकॉज इसका क्या मतलब है, इसका वैलेंसी 2 है, इट मींस इट कैन फॉर्म 2 bonds. Valency is the combining capacity ना, valency is the combining capacity of particular atom or the element. तो it can form 2 bonds. बट अगर यहाँ पे बात करी जाए OH की, तो OH जो अपना हाइड्रोक्सिल आइन है, इसका वैलेंसी रहता है -1, मतलब इट कैन फॉर्म 1 बॉन्ड ओनली. तो अगर इन दोनों का कोई कंपाउंड बनने जा रहा है, तो दैट कंपाउंड विल नॉट बी स्टेबल, बिकॉज ये तो अनस्टेबल रह रहा है ना. क्यों बॉन्डिंग में जा रहा है, इट इज अंडरगोइंग बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ मेकिंग इटसेल्फ स्टेबल. तो ये स्टेबल ही नहीं हो पा रहा, एक बॉन्ड बना के एक तो फ्री रह रहा है, तो अगेन इट इज इन अनस्टेबल कंडीशन. तो व्हाट इट कैन डू वन थिंग कि इट कैन कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड बट 2 इन नंबर. इसको 2 हाइड्रोक्साइड चाहिए अपने साथ कंबाइन करने को, सो दैट्स व्हाई इट विल बी written as like this. जिंक के साथ 2 हाइड्रोक्साइड लगेंगे, तब कोई भी हमारे पास कंपाउंड जो है वो स्टेबल बनेगा. होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, बट दिस इज ऑलरेडी डन इन 9th स्टैंडर्ड, वेरी कॉमन थिंग्स कि कैसे फॉर्मूला बन रहा है, वैलेंसी क्या है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैलेंसी के बेस पे कंपाउंड फॉर्म करता है. क्यों, वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी चीज की कंबाइन करने की कैपेसिटी, दैट इज वैलेंसी. और उसी वैलेंसी के बेस पे फॉर्मूलास फॉर्म होंगे, केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होती हैं और न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं. सेम इज द केस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. उसमें क्या है, एल्यूमिनियम केस में 3OH दिख रहा है आपको, यू कैन सी द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH thrice, like this written over there. तो इसका क्या मतलब है, we are very well aware about एल्यूमिनियम का क्या वैलेंसी है, 3 रहता है ना, 283, 13 एटॉमिक नंबर है, 283 इज इन बैलेंस शेल, तो इसका वैलेंसी +3 है. तो अगर इसको स्टेबल होना है, इट वांट टू बी स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड बनेगा. क्यों बॉन्डिंग करते हैं, क्यों शेयरिंग होता है, क्यों लूजिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, क्यों कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, स्टेबल होने के लिए ना, कि एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सके. तो OH का तो हमें पता है 1 है. तो अगर एल्यूमिनियम का कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है 3, तो it is not be stable with the particular ion which is only having combining capacity 1. तो इस वजह से क्या होता है, एल्यूमिनियम कितने से कंबाइन करेगा हाइड्रोक्साइड से, 3 से. So that's why this formula is written as this. So that's why this is triacidic base, क्योंकि इसको कितने चाहिए, 3 हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए. Fine, hopefully you understood this concept.